Hello everyone, this is Abhilasha Mishra in front of you all again. So my today's video is for the student of 6th standard. Alright, so my today's topic is pronoun. Alright, pronoun and their kinds. So before saying anything, I want to read a passage in front of you all. Okay, so listen it carefully. Seema said that Samira had lost Samira's bag in the park. The bag was big and the bag was of red color. Malti, Samira's friend, told Samira that Malti would look for the bag. As the bag was red, the bag should be found easily. Alright, so this is the passage. So how did you like reading this passage? Didn't you feel bored for reading these words again and again, like Samira's, Malti's and bags? Alright, right? You are feeling bored? So can anyone tell me what's the mistakes in this paragraph? Okay, I'll tell you what's the mistake in this paragraph. In this paragraph, we are repeating the nouns again and again. We are repeating nouns. Okay. So in the grammar section, what is the thing? If we have a noun, so again and again we have to recall the noun. Instead of that, we can use pronoun. Okay? हम noun को बार बार repeat करने की जगह हम उसमें pronoun का use कर सकते हैं. अब the question is, what is pronoun? Alright. So pronouns are words that are used instead of nouns in speaking or writing. Pronouns वो words होते हैं जो कि बोलने में या लिखने में हम noun की जगह पर use करते हैं. ठीक है, अभी मैंने जो आपके सामने पैराग्राफ रीड किया था वो था पूरा noun based. अब मैं आपको proper passage जो है वो रीड करके बताती हूँ. Alright? Samira said that she had lost her bag in the park. It was big and of red color. Malti, her friend, told her that she would look for it. As it was red, it should be found easily. Okay. So, अब इस पैराग्राफ में हमने क्या किया? समीरा के जगह पे जहाँ हमें जरूरत थी वहाँ हमने she का यूज किया, जहाँ हमने जरूरत थी वहाँ हमने her का यूज किया. बैग के लिए भी जहाँ हमें जरूरत थी वहाँ हमने it का यूज किया. Alright. So, these are called pronoun. नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स को कहा जाता है प्रोनाउन. ओके, सो दिस इज द प्रोनाउन. नाउ लेट्स कम टू द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. हाउ मेनी काइंड्स आर देयर? देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स आर देयर. ऑलराइट, आवर फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो अपन पर्सनली बोलते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, he, she, it, him, her, it, them. ये सब होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन. किसी पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए या किसी चीज के लिए हम जब यूज करते हैं प्रोनाउंस को, उनको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन. ऑलराइट. सेकंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. ये दोनों एक ही होते हैं. रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, okay, themselves, ourselves. These are the example of reflexive pronoun. Third one is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun मतलब हम किसी को demonstrate कर रहे हैं, किसी के लिए बोल रहे हैं, like this, that, okay. These are called demonstrative pronoun. These, those, okay. Fourth one is indefinite pronoun. Indefinite pronoun means जिसपे कोई definite मतलब properly जिसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं, like some, one, none, few, all. Okay, so these are called indefinite pronoun. Distributive pronoun, each, either, neither, nor. These are called distributive pronoun. Interrogative जिससे question बने, what, whom, who, whose. Okay, who, which, how. Relative pronoun में भी same होता है, who, whose, whom, that, which. Relative pronoun और interrogative pronouns में जो difference होता है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी. सबसे पहले हम बात करते हैं personal pronoun की. So what are personal pronouns? Alright. So what is personal noun? Okay, so I'll tell you.
The personal noun are so called because they stand for the three persons. Okay, personal noun जो है वो 3 persons के लिए stand करता है. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन की जब हम बात करते हैं तो वो होते हैं हम खुद, लाइक आई, वी, मी, अस. फर्स्ट पर्सन की जब भी बात करेंगे हम उसमें इन्वॉल्व होंगे. ऑलराइट, ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन की जब हम बात करेंगे तो हम किसी सामने वाले के लिए बात करेंगे जो हमारे सामने मौजूद होगा, लाइक यू, योर्स, दी, एटसेट्रा. ऑलराइट, और जब इसी तरह से हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन होता है जो कोई थर्ड पर्सन है, हम किसी और से बात कर रहे हैं और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो वो होता है हमारा थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में हम यूज करेंगे शी, ही, हिज, हर, दोज. ओके, सो दीज आर कॉल्ड थर्ड पर्सन. क्लियर? सो आई होप पर्सनल प्रोनाउन आपको क्लियर हुआ होगा. ऑलराइट, दिस our second pronoun is reflexive and emphasizing pronoun. Okay, so what are reflexive pronouns? The pronouns myself, ourselves, yourselves, itself. Okay, in sentences grouped under a behave like an object to the verb, but they refer to the same person as the subject of the verb. Such as pronoun are called reflexive pronoun. Okay, तो इस तरह के words like myself हो गया, ourself हो गया, itself हो गया, himself, herself, themselves, ये जो वर्ड्स होते हैं इन सेंटेंस में, ये आते हैं हमारे एक मतलब ए ग्रुप में. ठीक है, हमने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ए और बी. तो ये आते हैं हमारे ए ग्रुप में. ए ग्रुप में क्या होता है? ए ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट होता है बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट टू द वर्ब. ये ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ होता है, बट ये रेफर करता है किस चीज को? सेम पर्सन को. ऑलराइट, अब जैसे माई सेल्फ मैं बोल रही हूँ तो माई सेल्फ मेरे लिए बोल रही हूँ, मैं सेम पर्सन को रेफर कर रहा है ये. ठीक है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो उस सेम पर्सन को रिलेट करता है. तो इस तरह के नाउन्स जो, इस तरह के प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, एटसेट्रा इन द सेंटेंस ग्रुप अंडर बी आर यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन for the sake of emphasize. Alright, ये noun और pronoun दोनों emphasize आते हैं. They are therefore called emphasize. इसीलिए इनको emphasizing pronoun कहा जाता है. Alright, so our third topic is demonstrative pronoun. What are demonstrative pronouns? So the demonstrative pronouns are like this, these, that, those, such. Okay, these words are used to point out the object or objects for which they are used. ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये काहे के लिए हम यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए. लाइक किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? लाइक दिस बोर्ड, मैं बोर्ड के बारे में बात कर रही हूँ, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इस बोर्ड को. सो दिस बोर्ड. ओके, सो किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी चीज को दिखाने के लिए हम जिन प्रोनाउंस का यूज करते हैं वो होते हैं दीज, दो, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किसी को. ओके, सो दिस एंड दीज रेफर्स टू द थिंग्स नियर एट हैंड. अब मैंने इसको दिस बोला, क्यों? क्योंकि ये मेरे बिल्कुल पास है. और यदि मैं दूर के लिए मुझे किसी की बात करनी है तो मैं उनको क्या बोलूंगी? दैट और दोस. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेरे से दूर है. दैट पर्सन, वो पर्सन. ओके, क्लियर? डिफरेंस समझ में आया? यस मैम. दिमाग खराब. ओके, डिफरेंस समझ में आया? दिस, दीज ये हमेशा पास की चीजों के लिए लगेंगे. एंड दैट, दोज ये रेफर करते हैं हमेशा जो चीज हमारे डिस्टेंस पे है उसके लिए. ऑलराइट, ये है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्लियर? अब आते हैं हम नीचे जो कि है हमारा फोर्थ प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन. अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस के जो वर्ड्स होते हैं वो होता है ऑल, सम, मेनी, फ्यू. ओके, दीज वर्ड्स आर रेफर टू द पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे. एक जनरल वे में हम इनको रेफर करते हैं. ऑलराइट, दे डू नॉट रेफर टू एनीथिंग पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी पर्टिकुलर थिंग की बात होती है तब हम इन वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं. इस तरह के वर्ड्स को कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है, जैसे all are not happy, many are poor, one cannot believe it, right? Few are rich. तो इसमें हम indefinite pronouns का यूज कर रहे हैं. Our fifth one is distributive pronoun. So what are distributive pronoun? The pronouns
like each, either, neither. These pronouns are refer to the number of the person or things. ठीक है, जिसमें हमें किसी भी person या things के numbers को refer करना है at the same time, one at a time, उसी टाइम पे. ठीक है, तो उनको हम distributive pronoun कहते हैं. Alright. These pronouns are always singular and as such are always found by a verb in the singular. ये हमेशा pronouns जो होंगे वो हमेशा singular होंगे और ये हमेशा verb से पहले होंगे. Like each of the girls was given a rose. Each of the girl मतलब किसी एक लड़की. Okay? ये हमेशा singular words के लिए use में लिए जाते हैं. कौन से pronoun? Distributive pronouns. Alright? Now sixth one is interrogative pronoun. What are interrogative pronouns? So interrogative pronouns are pronouns like who, what, which, whom, whose. Okay, these are used for asking the questions. Pronouns used for asking the questions is called are called interrogative pronouns. Clear? जिसमें हमें questions पूछे जा रहे हैं वो होते हैं हमारे interrogative pronoun. Exactly same as sentences. Like interrogative sentence पढ़ा था हमने, उसमें भी यही चीज थी कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चंस पुट अप हो रहे थे वो थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इसी तरह से प्रोनाउंस में भी जिन प्रोनाउंस में हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रोनाउंस है हमारे which one? Interrogative pronouns. Alright. Now our sixth one is relative pronoun. Okay. Now in interrogative pronoun and in relative pronouns one similar things are there. What? The words are same. Like उसमें भी who था, इसमें भी who है, उसमें भी whom था, इसमें भी whom है. पर what is the difference between these two pronouns? That interrogative pronoun में तो हमेशा question पूछा जाएगा and relative pronoun में क्या होता है? Relative pronoun में हमेशा दो sentences को जोड़ा जाता है. Okay? जैसे कि आपको what मतलब क्या होता है? what का मीनिंग होता है क्या, और what को हम कई जगह जो के लिए भी यूज किया जाता है. ठीक है, what मतलब क्या भी होता है, what मतलब जो भी होता है. ठीक है, तो जब what का मतलब क्या है तो उस टाइम पे वो क्या हो गया? वो हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन. और जब व्हाट का मतलब जो आ रहा है तो उस टाइम पे व्हाट क्या हो गया? वो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि वो दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है आपस में. ऑलराइट, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. दिस इज द हॉर्स व्हिच वोन द रेस. ये वही घोड़ा है जिसने रेस जीती है. ओके, सो व्हिच मतलब कौन सा भी होता है और व्हिच मतलब जिसने भी होता है. ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? यदि विच को मैं पहले लगा देती तो वो क्वेश्चन हो जाता, पर मैंने विच को बीच में लगाया है तो ये रिलेटिव हो गया है. ठीक है, क्लियर हुआ? दो सेंटेंसेस को जिन वर्ड से हम जोड़ते हैं लाइक विच, दैट, इट. ओके, दीज आर कॉल्ड आर रिलेटिव प्रोनाउन. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Our last topic is use of relative pronoun. How can we use relative pronoun? Okay. Who is used for persons only. जब भी हम किसी person की बात करते हैं तो वहाँ हम use करते हैं who. It may refer to a singular or plural. Alright. Which is used for animals or things. Which कभी भी इंसानों के लिए use नहीं होता है. Which हमेशा किन के लिए use होता है? Which हमेशा animals के लिए use होता है और किसी भी things के लिए use होता है. Which कभी भी हम ऐसे नहीं पूछेंगे कि किसी एनिमल के बारे में पूछना है तो हमने विच लगा दिया. नहीं. हाँ, सॉरी, किसी भी एनिमल के लिए पूछना है तो हमने वहाँ पे हु लगा दिया. नहीं, विच हमेशा एनिमल्स के लिए यूज होता है और हु हमेशा पर्सन्स के लिए यूज होता है. ऑलराइट. अब है दैट इज यूज फॉर द पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग. दैट जो है वो हम सबके लिए यूज कर सकते हैं. दैट मैन, ओके, दैट काउ, दैट जग. हम पर्सन, एनिमल और थिंग तीनों के लिए इनको यूज कर सकते हैं. और दैट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. विच भी हमारा जो था वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर. ऑलराइट, सो आवर प्रोनाउंस आर कंप्लीटेड. इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन डायरेक्टली रिंग मी ऑन माय नंबर. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक्स फॉर